hear my sound? Yes, sir. Yes, sir. Chalo. So today we will start with the lecture at the point where we left off. So we were actually discussing the uh, orthogonal scheme. And this scheme is a little bit different from the BPSK scheme or binary phase shift key scheme or antipodal scheme. Here what we do, actually we place two orthogonal vectors. One is xa, one is xb, and their values are a0 and 0a, and we have shown that they are orthogonal to one another. So instead of transforming a data symbol to +1 and -1 of BPSK, we are transforming our signals now to XA and XB. Okay? Yes, as some student asked in the last lecture, yes, that now we are consuming two time slots. Previously, let us say my signal was at the baseband level, let us say it was just 0 or 5 volts, but I was sending +1 and -1 in my BPSK scheme. But for the orthogonal scheme, what is happening for 0 and 5 volts, I will be sending either XA or either XB. And I know that XA is now consuming two of my slots or two positions of the signal, two samples x0 and x1. Previously it was just occupying one. All right, is this understood? Last time I saw in the videos, many students you were always asking this question, so I hope this is now understood. This XA and XB concept is understood. It is a little bit different modulation scheme. It is not BPSK, it is a bit of a coded modulation scheme. So I know you have understood this point. I also tried to explain in the last lecture, but I thought that something was missing, so I should clarify it further. Now, सर इधर एक चीज़ क्लैरिफाई कर दें। सर ये बता दें कि अगर हमने एक कम्युनिकेशन मतलब एक टाइम के लिए कम्युनिकेशन करनी है तो हम एक ही इनमें से एक्स ए को भेजेंगे या दोनों को भेज सकते हैं? it will be depending on whatever the data or the whatever the baseband data that you have. Okay, na? First of all, what is the actual signal? The actual signal, let us say, could be 0 or 2 volts, 2020, whatever. It could be 22200, whatever scheme you have used. Now that scheme will be sampled. All right. Now what will happen that you have to choose. अच्छा वो अपना please mic बंद कर दें. Please turn off your mic so that we don't have any noise. Now what I am saying is that first of all you will make your original signal. Previously what we were doing, that yes, we had the original signal, but we were using binary antipodal signaling. The signal would have required only two values, and we were modulating it to +a and -a. Now this has drastically changed. We still have the same signal, the actual signal, but now we are applying this type of modulation, orthogonal modulation. Okay. For let us say there it was 0 and 5 volts, it was transformed to a and -a for BPSK. Now again we have 0 and 5 volts, but for 0 volts you will be sending A0, but for 5 volts you will be sending 0A. This is the difference. Hari, have you understood? सर एक बार दोबारा बता दें। I am just saying we are now using a different modulation scheme. Previously we had BPSK. For two values of data, you had decided I could send +a or -a. Now for two values of data, you are saying I can send XA or XB. This XA is different from BPSK.
it consumes 2 samples. The BPSK was consuming only 1 sample. It is consuming 2 samples. So that I could make a orthogonal scheme because previous scheme has failed. Hari, have you understood? Yes. सर यानी इसका मतलब है कि हमने पहले ए और ए सेंड किया या ए सेंड नहीं था किया बीपीएसके में, और इसमें हमारे पास एक्स ए है जिसकी 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं और एक्स बी है जिसकी भी 2 पॉसिबल वैल्यूज हैं, ये कह रहे हैं नहीं, आप? बिल्कुल गलत आप समझें. दिस इज नॉट द पॉइंट. You have actually taken the whole thing wrong. First of all, in BPSK you could send only A or minus A after modulation by Yes, sir. BPSK. Previously it could be any values. It could be 0, it could be 5. That we are not interested. But the end result was plus A and minus A. Alright? Now the end result Alright. is XA or XB. End result is not A minus A. Now is XA or XB. Sir, what are XA and XB? XA is A0 and XB is 0A. So we are using now 2 bits. That's what you are saying. We are now using a vector XA. Previously we were modulating with only A and minus A. Now we are modulating with a vector. Let us say 0 volts was giving us plus A. Now 0 volts will be giving me XA vector. Let us say previously 5 volts was giving me minus A because of modulation. Now it is completely different. 5 volts is giving me XB vector. Like modulation is the choice of communication engineer. He has to decide what type of signals will now represent my actual signal. I am saying that I will use this type of modulation in which my vector is actually taking up 2 spaces, 2 samples time. Alright, previously you used only 1 sample time. It is your wish, but that system failed. But I am now producing a new representation, a new modulation, orthogonal modulation scheme. कुछ समझ आया कि नहीं आ रहा आप लोगों को? सर एक क्वेश्चन है. sir. अब तीसरा बंदा भी सवाल पूछेगा. हाँ जी, पूछे. यस जी सर, ये जो ट्रांसमिटिंग एंड से हमें या एक्स ए भेजना पड़ेगा या एक्स बी, दोनों को भी हम भेज सकते हैं. इसमें और की कंडीशन लिखी हुई है. Yes, you will be sending XA. If the actual data corresponds to XA, you will send XA. If the actual data, let us say, corresponds to XB, you will say XB. But for one data, you will either send XA or XB. For one data, you cannot set 2 vectors. Each vector will represent one type of actual data. ओके सर. सर एक चीज कंफ्यूजन कर रही है. सर कंफ्यूजन ये है कि हमने लास्ट टाइम देखा था उसमें Y0 Y1 आया था. अभी हाँ जी आगे आएगा ना. तो सर हम कभी XA भेजें कभी XB भेजें, वो तो रिसीविंग एंड पे पता होना चाहिए ना कि इसने XA भेजा इसने XB भेजे, नहीं तो मसला हो जाएगा सर. No, we do not know at the receiver what was sent. This is the basis of all the communication. If we had known what was sent, there was no need of communication. We do not know whether XA was sent. We do not know whether XB was sent. We just know that Y is Y0 and Y1. Now I have a receive vector. Previously, I was just getting a receive scalar. Now I am getting a receive vector corresponding to single data. And I have to decide on this vector whether XA was sent or XB was sent. Okay, sir. Now let us go further. Now I explained to you in the last lecture what is this thing? ये हो गया था कि नहीं हो गया था? नो सर. Alright? Oh, yeah, सर थोड़ा सा आपने ब्रीफ बताया था बस जस्ट लेक्चर के एंड पे. So I didn't told you maximum likelihood. मेरे ख्याल से हो गया था. चलो आप कहते हैं नहीं हुआ. So this was covered. So how can I decide
whether XA was sent or whether XB was sent. So we make our decisions on these conditional probabilities, which is called likelihood functions. And for our case, they will become probability of y vector given XA, probability of y vector given XB. All right, this will be the likelihood function. Now, what is the maximum likelihood criteria? Maximum likelihood criteria is that I will decide on the signal whose likelihood function is maximum. All right, I will decide that SM was sent provided its likelihood function PR given SM is maximum. Now in this case, we only have two probabilities, so it is easy. We just have to compare these two probabilities. Now please remember, here confused होते हैं बच्चे. Y is a vector, XA is a vector, but this is probability of this probability is a scalar. Please do not confuse. This is a scalar. Scalar probability of a vector given XA. So we just have to compare based on our maximum likelihood criteria that whether probability of Y given XA is greater or probability of Y given XB is greater. I do not know what was sent. Okay, I will just see, all right, what is the probability of Y given XA? What is the probability of Y given XB? If Y given XA is greater, I will say XA was sent. It might be a wrong decision. If Y given XB is greater, I will say XB was sent. Again, it might be a wrong decision. I might have made a wrong decision. I might be in error, but I do not know. I have to decide based on my maximum likelihood criteria. I have to decide based on my logical design. हाँ यार कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? You have understood? Yes, sir. So, all right, I just take this here. So this is probability of Y over probability of Y given V greater than equal to 1, because this comes here, this comes like this. Now I will define my maximum likelihood, as you can see also here, the likelihood ratio. So I will define this this will be called the likelihood ratio. Here I have changed this to F. This is probability and this is also probability. This is more appropriate for analog distribution. This is called the PDF, the probability distribution function. So yes, this F is most appropriate. I take this ratio, I will take its log natural on both the sides of this equation. This becomes log natural of this ratio. This is why it's called the likelihood. And log natural log of e to the base e, exponential of 1 is equal to 0. So I just have my likelihood, which is greater than or equal to 0. I know if the likelihood function is greater than 0, this means XA was sent. If the likelihood function is less than 0, then I can definitely say that XB was sent. सर likelihood probabilistic model है. Likelihood एक number है. All right, it's just a number. Yes, this number is found by taking log natural of the ratio of the two probabilities, where these probabilities are just scalar numbers. Okay, sir. It will be just a number. If this Yes. number is greater than 0, I will say XA was sent. If this number is less than 0, I will say that XB was sent. Got it, sir. Okay. Now, of this. So if you see in the book, this book, he has missed all those steps of finding the likelihood ratio, and he has directly said that the likelihood ratio, or calculating this ratio of these two probabilities, which are actually probabilities of vector given a vector, comes out to be this thing. Okay, but we cannot just jump from here to here without doing all the steps. So we will be explaining all these steps of how can we get this likelihood ratio. So first of all, we need to find these probabilities.
then we will take the ratios and you will see this comes out to be something like this. So let us do this one by step. First we will follow this book and then we will see its computation. Now first of all, XA, all right, very good. XA is let us say that XA was transmitted. So what will be Y0? All right, so Y0 will be this thing. Are you clear why Y0 will be this thing, or should I explain this? If XA is transmitted, Y0 comes out to be this thing. Are you understood with this thing? Actually, I think I explained this in the last lecture, but again, if you are not understood, I will repeat this again. If XA is transmitted, then Y0 will be this thing and Y1 will be this thing. Are you clear with this or not clear with this? सर ये जो सर इसमें वेरिएंस पहले वो बंदा बोले जो इन्होंने पहले बोला था। हाँ जी, ये वेरिएंस किस तरह आई है सर? a square plus n naught। ठीक है, आपको नहीं पता ना, ठीक है मैं बता देता हूँ। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन। सर ये एनो नॉइस को रिप्रेजेंट कर रही है क्या? दोबारा सवाल पूछे, व्हाट आर यू सेइंग? सर एनो जो एन नोट है वो नॉइस को शो कर रहा है, a square plus n naught। Yes, we have discussed this actually, that the signal is signal plus noise, and noise is n naught by 2, but if you write it as a complex circular Gaussian random variable, it comes out to be 0 n naught. Yes, this is the variance of the circular symmetric complex Gaussian random noise or random variable, and you know that is representing the noise. So this is yes, variance of the circular symmetric Gaussian, or this is the variance of the complex noise, you can say it like that. All right, so the student is not clear how we have got this, so we will go back and try to learn about this. ये मैंने कब किया था वैसे? ठीक है. First of all, you know what is Y0? Yes, Y of 0 will be H0 into X0 plus W0. All right. If I say that XA is transmitted, then I know what is XA. What is XA? XA is equal to X0 X1, where X0 is A and X1 is equal to 0. All right, this is my XA. So if I say that XA is transmitted, then what will be my Y0? All right, you can see here that your Y0 will then be equal to X0 into X0 plus W0. All right, same thing I have written, it will be H0 into X0 plus W0. Now, what is X0? So we saw X0 is equal to A. So we just put X0 equal to A. So your Y0 comes out to be A into H0 plus W0. Next question is, what is H0? So we have learned this previously, that this is a flat fading model, and we have seen that flat fading model comes from the Clark's model. Clark's model comes from the previous chapter knowledge, that the channel coefficients are circular, symmetric, complex, Gaussian random variables. And we have deliberately also said at the once we started this chapter that HFM is a circular, symmetric, complex, Gaussian random variable. We have mean will always be 0, and we have taken its variance to be unity. We have deliberately taken its variance to be unity. So all right, no problem. We just put it as CN01. Now what is WZ? WZ we have already seen in last chapter. It is a circular, symmetric, complex, Gaussian random variable with a variance of n0. I know it is actually n0 by 2 in the real and the Q phase and the I phase, but when you will add them up, this will come out to be equal to n0. All right. Now once you multiply this with A, A will go inside, this will become A square, and when you will add them up, this will become Cn0 A square plus n0. That is why Y0 will be equal to Cn0 A square plus n0. Now my question will be, अच्छा हाँ क्या पहले आप पूछ लो, A square यहाँ से आया, ये जो आपने ऊपर वाले
सर जो ए सिंपल ए था ना, इसको अंदर हमने मल्टीप्लाई किया है, तो स्क्वायर कैसे हो गया? हाँ ये तो मैंने आपसे पूछना था। अच्छा चलिए मैं थोड़ा सा आपको पहले दिखाता हूँ, पहले मैं आपको दिखाता हूँ, फिर मैं आप पूछता हूँ कि आपने कितना वहां पढ़ा है। वेरिएंस हाँ है जी, तो इसलिए। वहां आपने, भाई ये तो मैग्नीट्यूड है ना। सर ये स्प्रेड पे डिपेंड करता है ना, स्प्रेड जितना ज्यादा होगा वैसे। स्प्रेड नहीं, इसका तो मैथमेटिकल प्रूफ आपने देना है। वैसे ये तो मेरे ख्याल से आपने पढ़ा हुआ अपने पिछले कोर्स में, स्टोकेस्टिक पढ़ के आए, तो मजाक थोड़ी है। चलिए खैर, ये मैं आपको बता, परेशान ना हो, ऐसे मैं ऐसे मजाक कर रहा हूँ बताने के लिए कि वैसे आपको आना चाहिए। देखिए यहाँ देखें जरा गौर से देखें, अब देखें यहाँ पे आपको आता है। मैं उसी चीज को दोबारा कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखें ACN01 ही है, H0, और W0N0N0 है। यहाँ पे तो कोई इख्तलाफ नहीं ना, ठीक हो गया। आपने कहा वो आया कैसे, लेट अस सी। अच्छा, व्हाट इज CN01? कैन आई राइट माय CN01 एज n रियल, रैंडम वेरिएबल रियल, 0 हाफ प्लस j n इमेजिनरी 0 हाफ। हाँ जी, इस CN को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यस सर, लिख सकते हैं। ये हमने बताया था उस दिन कि एक्चुअली एक सर्कुलर सिमेट्रिक होता है रियल और इमेजिनरी पार्ट, और इसकी पावर दोनों में हाफ हाफ डिवाइड होती है। ऑलराइट। अच्छा, अब आपसे सवाल है, एक सादा सा रैंडम वेरिएबल है, अगर मैं उसको a से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? क्या उसकी ये a से जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है वो अंदर जाके a स्क्वायर हो जाएगा या नहीं होगा? हाँ जी, पढ़ा हुआ है ना आपने, और इसका प्रूफ भी उन्होंने आपको करवाया होगा। ये इसके बगैर ये तो स्टोकेस्टिक में लाजमन करवाते हैं। सादा रैंडम वेरिएबल है, अगर आप उसको वो भी गॉसियन, अगर आप उसको किसी a से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो a है वो उसकी वेरिएंस में फर्क डालता है। या ये पता है कि नहीं पता इस चीज का? यस। सर ये चीज का नहीं नहीं पता। पता सर। ये नहीं पता? हाँ यस जी। सर, नहीं नो पता। सर हाँ सर, अस्तगफिरुल्लाह। सर ने रीड, सर ये चीज नहीं हमने जो की। माय गॉड, ये तो हो ही नहीं सकता ना। ये तो आप ऐसी बात करें, ये तो बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी में है कि रैंडम वेरिएबल को आप मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू, एक गॉसियन रैंडम वेरिएबल को, तो उसका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर अंदर चला जाता है। चलें, एज यू आर सेइंग, आई जस्ट बिलीव इन यू। If you have not studied stochastic, then it was understood. Maybe you have not revision or something, but it can never happen if you have studied stochastic here and you have not been taught that the random variable when it is multiplied, that thing goes inside. यहाँ पे देखिए, ये अगर ये वैसे ये बेसिक सर ये पढ़ाएगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात तो नहीं कर रहे? तो जाहिर है लीनियर, आपने किसी से मल्टीप्लाई किया तो लीनियर ही आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सर ये पढ़ा हुआ शायद, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के हाँ बारे तो में मुझे पढ़ा। मैं वही आपको कहते पढ़ा होता है लोगों ने, मगर बहरहाल आप लोग कह रहे हैं कि नहीं पढ़े, मैं आपको बता देता हूँ इसका। वैसे तो मैंने, अगर आप चाहते हैं तो फिर नोट्स पे जाना पड़ेगा, और वैसे नोट्स पे नहीं तो ये वैसे आप इस बुक से देख सकते हैं। यहाँ पे आपके पास x एक रैंडम वेरिएबल था, इसका मीन 0 था, वेरिएंस 1 था, आपने उसको मल्टीप्लाई किया ax प्लस b से। अगर आप सिंपल ax से मल्टीप्लाई करते तो फिर क्या होता कि जो वो जो आता, वो जैकोबियन और सारा कुछ करने के बाद, तो वो अगर फर्स्ट के b से आपने, तो ये सिंपल आता है n0a स्क्वायर आता। आपने a से मल्टीप्लाई किया, वो वही a इधर भी चला गया, इधर भी चला गया, अब इसमें जैकोबियन लगाएं वही निकल आएगा। तो यहाँ पे उसने मीन से भी ऐड किया, इसलिए मीन भी इसका b पे शिफ्ट हो गया। तो ये तो बहुत ही बड़ा रूल है हमारे प्रोबेबिलिटी का। जैसे इन्होंने, अब इनको याद आ गया, पहले याद नहीं आया था। So it's a very important rule that if you have a Gaussian random variable and you try to scale it with a multiplicative factor or additive factor, then that factor comes in the mean as well as the multiplicative factor comes in the variance. ठीक हो गया? सर ये इक्वेशन पढ़ी हुई है हमने, ये जो ax प्लस b तो वाली, बड़ा जल्दी याद आ गया ना, उससे पहले अगर ही बताना था वेरिएंस ना आपको। निकालने, उससे वेरिएंस तो वही तो निकालने हुआ है तब ना, वो a तो स्क्वायर आता है मल्टीप्लाई उसका। करने के बाद अगर a इस स्क्वायर तरह हो आप गया कह रहे ना, हैं तो फिर समझ आ गई हमें। तो आपको खुद समझना चाहिए था ना, a के मल्टीप्लाई a स्क्वायर हो गया, ठीक है। फिर ये भी a इसके साथ जाएगा, ये भी a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन? अच्छा, ये दिस इज n0 n0, दिस इज n0 by 2 n0 by 2, दिस इज एज यूजुअल प्लस एंड रियल एंड ऑल दैट, ठीक है। नाउ व्हाट आई डू,
So I take this real part and I take the real part. They are both real. I combine the real parts. Again, if I'm adding two random variables, all right, so their variances will be added. All right, so I'm just adding their variances like this. There are two imaginary parts. I'm just adding their variances. This will be added. But when I add the real and imaginary part, I know this will now become Cn. And their variances will be again added. This will be now written as a square and not Cn. तो जो मैंने पहले बताया उसका पूरा प्रूफ भी बता दिया एंड इसके इंडिविजुअल स्टेप्स भी आपने अपने पिछले में जरूर पढ़े होंगे. Alright, is everyone understood? Yes, alright, sir. why y0 is Yes, equal sir. to, alright, now my question is, alright, y0 is understood to be, so what is y1? Can you show that y1 is 0 and not? समझ आ गया आपको? y1 will be 0 and not. Is this understood or not? लगता है खामोशी है. नहीं समझ. Why? What's Yes, sir. Understood. y1 की वैल्यू कैसे Yes, है? because what is y? y1 is again h1 into x1 plus w1. But what is x1? If I say that xa is transmitted, 0. it is 0. So 0 times h is 0. So I will be just Yes. getting noise. And noise is already 0 and not. Alright. And So not. we have found the value of y0. We have also found the value of y1. And you can see that y0 and y1 are independent. Yes, they are both independent. Noise is actually independent in both the cases. Then you have the signal and the channel, so they are definitely independent. If I say that xb is transmitted, in that case I can very well say what will be y0? Y0 will become the previous y1 because you know if xb is transmitted, it is 0b, is 0a. So first one will become this thing and the second thing will become its first thing. Alright, so we have now found what is y0, y1 even if xa is transmitted, or we have found y0, y1 even if xb is transmitted. And again you can see that y0 and y1 are always independent. Okay? So we have done this part. Again, this step is totally missing in the book, so we have to go to the notes. So we have seen that y is equal to y0, y1, and it is something like this. Now we find the covariance matrix of my y vector. Acha. You will say, sir, why this covariance matrix? Actually, if you go in this book, okay, Adi, I think in stochastic you have also studied the probability distribution of a vector. पढ़ा कि नहीं पढ़ा आप लोगों ने? हाँ जी. नहीं सर, ये नहीं पढ़ा, वेक्टर के नहीं पढ़ा. नहीं, मैं ये नहीं पूछा, ये नहीं पढ़ा, ये तो नहीं पढ़ा, मगर मैं पूछ रहा हूँ कि have you studied how to find the probability distribution corresponding to a vector? एक तो है ना स्केलर. यस सर, पढ़ी वेक्टर सर. पढ़ा है ना, तो फिर तो बस सही है, फिर आपको आता सारा. तो मैं आपको बस हल्का हल्का बता रहा हूँ. वैसे भी ये हम यहाँ नहीं पढ़ाते कि वेक्टर की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालनी, हमसे बस बताना होता है हमें कि ये रिजल्ट्स हैं, हम तो खाली रिजल्ट्स लगाएंगे यहाँ पे. पर वेक्टर की प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका स्टोचस्टिक में जो है वो पढ़ाया जाता है. आई विल जस्ट गो थ्रू रिवीजन हियर. If you have a complex Gaussian random variable, then its distribution provided have a vector is given as follows. All right, f of x is given as follows. X is the vector. It is a complex Gaussian random variable. K is the variance of the vector, and its formula is given as follows. So in order to find the PDF of a vector, we have to use सर this मैं आपको formula. इंटरप्ट कर रहा हूँ सर, हमने गॉसियन वेक्टर पढ़ा है, ये वाला वेक्टर नहीं पढ़ा सर. हाँ, ये भी गॉसियन ही है, मगर ये असल में सर्कुलर सिमेट्रिक गॉसियन है, ये ज़रा कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, तो एक्चुअली इसमें काफ़ी डिटेल्स इधर दी हुई हैं उसके लिहाज से, वो वेक्टर के लिहाज से और रैंडम वेरिएबल के लिहाज से. वो यहाँ से आप स्टार्ट करें तो एक दफ़ा गो थ्रू कर लें. ये आपने ये चीज़ पढ़ी हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ वेक्टर.
ये W एक वेक्टर है जो गॉसियन वेक्टर है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी भी आपने ये वाली? सर ये इंडिपेंडेंट है? मोहम्मद साद साहब, हाँ जी। सर ये इंडिपेंडेंट क्या इंडिपेंडेंट मतलब? W है, सर गॉसियन रैंडम वेरिएबल होते हैं आपस में, IIDs नहीं है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल होते हैं, लिखा तो है इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल। सर ये आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा ये वाला? PDF of a vector where W values are W1 WN and they are IIDs। ये तो सर लाजमन इसमें पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। CXY भी आता था सर, यानी कि ये ये पढ़ा हुआ तो अरे सर ये पढ़ा हुआ है, पढ़ा ये हुआ है पढ़ा हुआ है। सर, हाँ सही बात है, ये पढ़ा होगा आपने। पढ़ा हुआ है सर। लोन साहब ने बताया कि यस। उन्होंने पढ़ाया हुआ है। अच्छा में वो आपको थोड़ा लोन साहब ज़्यादा पढ़ा देते ना, थोड़ा सा उन्होंने शायद कम पढ़ाया हो दूसरी टीचर ने, यूसुफ क्या नाम है साहब ने, मगर ओवरऑल ये कोर्स में है वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। फिर इसमें ये होता है कि अगर ये तो हो गया ना कि स्टैंडर्ड वेक्टर था, उसकी ये रिप्रेजेंटेशन होती है। और अगर ये वेक्टर थोड़ा सा यानी कि ट्रांसफॉर्म्ड है, इसका मीन 0 नहीं है, वेरिएंस 1 नहीं है, तो उसके केस में जो आपकी रिप्रेजेंटेशन होती है वो इस किस्म की बन जाती है, और ये सब रियल वेक्टर्स होते हैं। आप इस ए को ना आप ये भी लिख सकते हैं कि ये एक्चुअली कोवेरियंस है, यानी जो एक्स वेक्टर था उसमें मीन माइनस क्या है तो वो इसके बराबर होता है। तो ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब यहाँ जो नई चीज़ में भी कि शायद आपने ये नहीं पढ़ा होगा, वो आपकी बात ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स गॉसियन रैंडम वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके लिए भी हमारे पास एक्चुअली टूल सेम होते हैं, बट हर चीज़ ज़रा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। मीन आपका सेम रहेगा, कोवेरियंस का भी देखें वही फॉर्मूला है, एक्स माइनस म्यू, और ये कॉन्जुगेट का यहाँ मतलब देखें, इसका मतलब होता है कि कॉन्जुगेशन भी हो रही है और ट्रांसपोज भी हो रही है। तो आप ना फिर वेक्टर के साथ भी सर्कुलर सिमेट्री डिफाइन कर सकते हैं। मतलब आप कहें कि मीन ऑफ अ वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू मीन ऑफ अ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ईजे थीटा। आप बताओ सर्कुलर सिमेट्री की प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपने ईजे थीटा से मल्टीप्लाई भी किया फिर भी वही मीन रहेगा जो पहले मीन था। अब ईजे थीटा तो एक कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा, तो फिर ये दोनों कैसे बराबर होंगे? उसी वक्त बराबर होगा जब ई ऑफ एक्स भी 0 हो। तो जो सर्कुलर सिमेट्री की प्रॉपर्टी एक आम रैंडम वेरिएबल के लिए थी, एक आम कॉम्प्लेक्स, दैट सेम प्रॉपर्टी एक्चुअली बॉइल्स डाउन to a circular symmetric random vector, so that its mean of that vector has to be 0, because this cannot never be true, it can only be true if e of x is 0. ये सूडो का ऐसी बेकार है, इसका तो कहने की जरूरत नहीं, बट यू कैन फाइंड इट्स कोवेरियंस एंड द कोवेरियंस विल आल्सो रिमेन द सेम, कोवेरियंस तो चेंज भी नहीं होगा। तो आपसे कहेगा वाई, आप इसमें खुद से देखा, मैं कोवेरियंस निकालता हूँ इसका x माइनस, अब जब मैंने इसको ईजे से ट्रांसफॉर्म किया तो यहाँ पे ईजे थीटा आएगा, यहाँ पे ई माइनस जे थीटा आएगा, और दोनों आपस में कट जाएंगे, तो कोवेरियंस तो वैसे ही सेम रहता है। ऑलराइट, कोवेरियंस ऑफ अ सर्कुलर सिमेट्रिक गॉसियन रैंडम वेक्टर, ठीक है, रिमेन्स द सेम एंड यू कैन सी इन द कैलकुलेशंस। हाँ, ये समझ आ रहा है कि नहीं? कुछ आ रहा समझ, ऊपर से गुजर रहा सारा आपको? यस, समझ आ गई इसकी। समझ आ रहा है ना? तो इसीलिए आप क्या करें, अब आपने वेक्टर से डोनेट करना है, तो एक सर्कुलर सिमेट्रिक वेक्टर क्या होगा कि उसका मीन फिर भी 0 होगा, मगर वेरिएंस की जगह आप उसको के वेक्टर से डोनेट, के को हम कहते हैं कोवेरियंस मैट्रिक्स, क्या कहते हैं? और ये बड़ा मशहूर फॉर्मूला होता है इसका, एक्स माइनस म्यू इंटू एक्स माइनस म्यू, और ये है कॉन्जुगेट सिमेट्रिक्स, यानी कि इसका मतलब आपने कॉन्जुगेशन भी की और उसका ट्रांसपोज भी ले लिया, इसको एच कहते हैं, हेर्मिशियन कह सकते हैं, हेर्मिशियन लेना। ये तो वही सारी चीज़ें हैं ना कि जब भी उसका एक कॉम्प्लेक्स गॉसियन रैंडम वेरिएबल है सर्कुलर सिमेट्रिक, तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? रेली होगा। ये उसका एम्पलीट्यूड जो है वो उसका रेली होगा, तो वो यही बताना चाह रहा है कि वो रेली होगा। ठीक है, और ये कि अगर आप उसका मॉड स्क्वायर का लेंगे, मॉड स्क्वायर का, ये तो आपने उसके मैग्नीट्यूड का लिया था ना, तो फिर आता है रेली। और अगर आप उसके क्या कहते हैं, उसके यानी कि मैग्नीट्यूड स्क्वायर का लेंगे तो वो क्या बनेगा? एक्सपोनेंशियल। और तो ये एक्चुअली आप ड्राइव किया जा सकता है इसका,
फॉर अ सर्कुलर सिमेट्रिक गॉसियन रैंडम वेरिएबल। हम अगर हमारी डेरिवेशन कोर्स का हिस्सा नहीं, वी जस्ट हैव टू यूज द फॉर्मूलाज फ्रॉम मतलब स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस, but I will definitely tell Asim Loan to add circular symmetric random variables also in the, or the complex Gaussian random variables also in the stochastic course, so that you are also well versed. How can you get this thing from its real representation? आप रियल रिप्रेजेंटेशन से आप इसका कॉम्प्लेक्स गॉसियन का भी रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं। वो ऐसा नहीं कि ना निकले, ये वाली रिप्रेजेंटेशन भी निकल सकती है, ये मगर होगी सिर्फ सर्कुलर सिमेट्रिक रैंडम वेरिएबल जो स्टैंडर्ड हो, यानी जिसका कोवेरियंस जो है वो आइडेंटिटी हो, उसकी ये निकलती है। अगर आप यूज़ करते हैं, फर्ज करें एक सर्कुलर सिमेट्रिक जिसकी वेरिएंस जो है, जिसका जो कोवेरियंस मैट्रिक्स है वो यूनिटी नहीं है, तो इन दैट केस इट कम्स आउट टू बी लाइक दिस। ये भी A12 से और A21 जो इसमें ये लिखा हुआ है, A21 ये वाली इक्वेशन और A12 जो है ये वाली इक्वेशन जो है, जो हमने पहले ये वाली, इनको आप यूटिलाइज करें। मगर इसमें जाहिर है कि इसमें आपने जो इसको जब आपने ट्रांसफॉर्म करना है तो इसमें आपने वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन करनी होगी। शायद आपने वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी होगी कि अगर आपको स्टैंडर्ड एक वेक्टर हो और उसमें कुछ आप चेंज कर दें, मतलब उसको मल्टीप्लाई करें किसी मैट्रिक्स से, ऐड करें किसी वेक्टर से, तो फिर उसके बाद उसकी न्यू ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है। अरे ये चीज़ आपने पढ़ी हुई है, वेक्टर ट्रांसफॉर्म। जैसे अभी मैंने आपको ना स्केलर ट्रांसफॉर्मेशन हुई ना, आपने गॉसियन रैंडम वेरिएबल को मल्टीप्लाई किया और ऐड किया, इस ये भी पढ़ा हुआ है आपने, तो फिर तो आपको सारा आता है। फिर मुझे क्या सर, ये पढ़ा हुआ है ना, मुझे पता है मैंने पढ़ाया होगा। So this is the result. You can use your previous knowledge and you will be able to get to the result that if x is a random circular symmetric all that, so its distribution will be given as follows। ठीक है, ये आपने पिछले कोर्स में देख लें। यहाँ पे x एक कॉम्प्लेक्स गॉसियन, यानी कि एक क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, कॉम्प्लेक्स स्पेस में है, के उसका कोवेरियंस है और ये सारा उसका फॉर्मूला है। मे बी आपने इसे ड्राइव भी किया हो, ये वाला आपने पिछले कोर्स में। हाँ जी, ड्राइव किया हुआ इसको? नो सर, ये वाला नहीं किया हो, ये ड्राइव नहीं किया। चलें ठीक है, ये आप ना ही करें, हमें कोई ज़रूरत नहीं इसको ड्राइव करने, मगर आपको पता होना चाहिए कि आप स्टोकेस्टिक प्रोसेस लगा के इसको आप जो है ड्राइव किया जा सकता है। ठीक है, so we won't go into all these details, but we just have to know why this covariance is so important। वो मैंने आपको बताना था कि कोवेरियंस की वजह से फिर वो f की डिस्ट्रीब्यूशन आएगी। अब हमने कहा ना y गिवन x है, तो उसमें वो सारा वेक्टर है, तो वेक्टर के लिए हमें ये वाला चाहिए होगा, तो ये निकालेंगे तो आएगा ना, उसके लिए k निकालना ज़रूरी है, बस हमें इतना बताना चाहिए। ये फॉर्मूलाज वगैरह हम आपको एग्जाम में देंगे, हमने थोड़ी यहाँ पे स्टोकेस्टिक करवानी है, हमें तो बस आपको अप्लाई करवाना है। जहाँ जो बेसिक बुनियादी चीज़ ज़रूरत होगी वो बताऊँगा मैं आपको ज़रूर। Now, so we have to find the covariance matrix. Now, what is the formula of the covariance matrix? I want to find the formula. अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जरा गौर से देखिए। I want to find the covariance of y given xa, of y given xa. So this was my y vector, यही है ना, and this was y given xa। देखिए ना, xa जब given था तो फिर ये xa वाला a स्क्वायर प्लस n नॉट हुआ और दूसरा वाला n नॉट हो गया, तो दिस इज y गिवन xa। क्लियर हो गया कि y गिवन xa सबको समझ आ रहा है? ठीक है ना, दिस वेक्टर इज y गिवन xa और everything is clear। Now I find its covariance। All right, so what is covariance? Covariance will be this y vector, which is y given xa, times yh, actually it is actually y minus mean and y minus mean h, but we know mean is 0। all right, the mean of my y vector is 0। हाँ जी, आपको समझ आया कि मीन इसका क्यों 0 है, y वेक्टर का मीन क्यों 0 है? हाँ जी, समझ आ रहा है सबको? Why the mean of y given x is, because again this is 0, this is 0, both the means are 0। all right, this is simply 0। so we just have to we are just applying this formula to find the k u mu is 0। we just so e into x, instead of x we have e of y, which we know is y given xa।
So I put y is this, I put y Hermitian conjugate. So this is, you know, Hermitian, I take its conjugate and then transpose. This is written as follows. So I do the multiplication, this goes with this, and you can know, so see, this all goes like this. Then I will find mean of product y0 y0. समझ आ रहा सबको? Mean of, but what is y0 y0? Y0 into y0 is actually y0 mod square. And what is y0 mod square? What is E of y0 mod square? What is E of y0 mod square? Variance. This is the variance. Why this is a variance? We know actually variance is equal to Ey mod square minus mean of square. But mean is 0. Mean is totally 0. Yes, sir. Mean of y0 is 0. So E of y0 mod square will be equal to the variance. So, and we know what is the variance of our y0 variable. The variance of our y0 is a square plus n naught. So I can just write this as a square plus n naught. This term is equal to y0 into y1, and we already know that y0 and y1 are totally independent. ठीक है? अगर आपको शक हो तो Yes, sir. खोल के देख लें. अनकोरेलेटेड तो हल्की है भाई, ये तो इंडिपेंडेंट है. Yes. इंडिपेंडेंट का आपको थोड़ा पता नहीं इंडिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? सर उनकी इंडिपेंडेंट का मतलब है कि देयर जॉइंट कोरिलेशन. हाँ, इंडिपेंडेंट का मतलब है कि अगर इनकी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन निकालें, जैसे मैं कहता हूँ एक्स एंड वाई दो रैंडम वेरिएबल्स है, मैं कहता हूँ इनकी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स वाई, सो एफ एक्स वाई विल बी इक्वल टू एफ एक्स टाइम्स एफ वाई. दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट. यस सर. यस. ठीक है. अब आपने कहा कि उसकी इंडिपेंडेंस और फिर आपने उसकी एक्सपेक्टेशन को लिया. जब एक्सपेक्टेशन लेंगे दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स को, तो दैट विल बी जस्ट इक्वल टू ई ऑफ एफ एक्स टाइम्स ई ऑफ एफ वाई. हमारे केस में ई ऑफ वाई जीरो इंटू ई ऑफ वाई वन. ठीक हो गया? हाँ जी. ई ऑफ वाई जीरो किसके बराबर है? व्हाट इज ई ऑफ वाई जीरो? व्हाट इज ई ऑफ वाई जीरो? इट इज 0. ई ऑफ वाई वन इज 0, सो दैट इज व्हाई दिस विल बी 0. समझ आ गया आपको? जी सर. ठीक है. तो इंडिपेंडेंट सर ये जो वैल्यूज हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ये पीछे जो हमने पढ़ा था y ऑफ 0 और y ऑफ 1 जो y का वेक्टर है, उससे वैल्यूज हम लेकर इसमें प्लेस कर रहे हैं. हाँ, y तो वेक्टर था, मगर ये y0 क्या है? y0 पहले वेक्टर का पहला पार्ट है, y1 पे उसी y वेक्टर का दूसरा पार्ट है. यानी कि ये स्केलर है, y0 स्केलर है. हाँ, y टोटल वेक्टर था, मगर मैं अब उसको स्केलर में सॉल्व कर रहा हूँ. हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? सर उसकी एंट्री से अच्छा ठीक है सर, समझ आ गया. ओके. आप जब इसको करेंगे तो यहाँ भी y1 y0 ये दोनों आपस में 100% इंडिपेंडेंट है. fy और fy0 की दोनों की प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट है बिल्कुल ही. एक में नॉइज है, वो भी इंडिपेंडेंट है इसकी नॉइज से, और एक में फिर ऊपर से उसमें h है और a है, वो भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है. a भी, तो इसमें तो कोई रिलेशनशिप है ही नहीं. दोनों इंडिपेंडेंट है, दोनों की प्रॉपर्टी लेंगे, फिर दोनों का e लेंगे, दोनों का e भी 0 0 तो पक्का 0 हो जाएगा. अब सवाल आ गया. ठीक है. अब आया y1 क्या होगा? अगेन दिस इज जस्ट y1 mod square. So just y1 mod e of y1 mod square, and I know what is e1 y1 mod square. I have just seen that y1 is a zero mean. Y1 is a zero mean with variance of n naught. If it's ever 0, remember then the variance is equal to e of y1 mod square. ठीक है ना? ये तो हमने रूल पढ़ा हुआ है ना आपका. जब मीन ही 0 हो जाएगा तो फिर तो वेरियंस बराबर हो जाती है ना e of x square के, e of y square के. सही है. So this will be equal to its variance, which is equal to n naught. So we have found the covariance matrix, and I can also find its determinant. This minus 0 0, this will just this will be its determinant value. So again the formula that I showed you,
We will just take this formula. We don't have to write this formula. This is for the previous course. We should know that this could be driven by following appropriate stochastic or probability methods for vectors. So I will just put the values. Y is known. I just put the value of k. अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे k का ना इन्वर्स आएगा. अब ये तो आपका k वेक्टर था, ठीक है ना, k वेक्टर ये था. जब इन्वर्स लेंगे तो क्या होगा, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे और इनका जीरो का साइन नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा. तो जीरो का साइन तो नेगेटिव होने से जीरो ही रहेगा और ये बस दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे. ठीक है, डिटर्मिनेंट हमने पहले ही निकाला हुआ, वो यहाँ पे आ जाएगा. ऑलराइट, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया. ठीक है ना. तो हम कुछ नहीं करें, हम इसी फॉर्मूले को, ये कहाँ गया, हाँ, हम सादा सादा इस फॉर्मूले को फॉलो करें. डिटरमिनेंट ऑफ के, फाई एन और सारा कुछ. अब हमारा फाई एन आपको पता है ये फाई 2 के बराबर है, क्योंकि हमारे 2 है ना, हमारी जो वेक्टर की लेंथ है वो 2 है, तो ये फाई 2 हो जाएगा. बस इतना सा. ठीक है, एन की वैल्यू सर 2 हो जाएगी. बिल्कुल 2 हो जाएगी. ये अभी लिखा नहीं, वो सही हो जाएगा. ये अंडर गलती से लग गया. असल फॉर्मूला यही जो यहाँ लिखा हुआ है, ये वाला फॉर्मूला आपने यूज करना है. जो इसमें गलती नोट्स में, उसको आप करेक्ट कर सकते हैं. हाँ, इसको जरा देखें कैसे सॉल्व होगा, ये थोड़ा चक्कर है. अच्छा, वो ना, इसका जो आपको पता है ना, इन्वर्स निकालने का तरीका क्या होता है. इन्वर्स निकालने का तरीका होता है कि इसको -1 करें और इन दोनों को इंटरचेंज करें, मगर उसको आपको डिवाइड भी करना पड़ता है डिटर्मिनेंट से. अब इसका डिटर्मिनेंट तो हमने निकाल लिया था, ये वाला, तो ये इसका इन्वर्स बन गया टोटल. अब आपने ये टोटल इन्वर्स जो है ना, वो आपने इस इन्वर्स की जगह लिखना है. जो इन्वर्स है उसकी जगह आपने ये पूरा मैट्रिक्स ऐसे करके लिख देना, जैसे मैंने ये लिखा हुआ. अब आपने ये तो वही आ गया, ये फाई स्क्वायर है, एन आप फाई स्क्वायर कर दीजिएगा, बाद में सही हो जाएगा. वैसे इधर आया, ये सारा आ गया. अब आपने क्या करना है, ये वो वाई वेक्टर, ये इसका इन्वर्स आ गया, ये वाई वेक्टर आ गया मगर उसका कॉन्जुगेट के साथ. पहले आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये पहली रो और इसका पहला कॉलम, एन नॉट जाएगा वाई जीरो के साथ, मगर जीरो ये तो इसको जीरो कर देगा, तो आपके पास उसमें मिलेगा एन नॉट वाई जीरो प्लस जीरो. जब ये वाला रो इसके साथ जाएगी, जीरो जीरो कैंसिल, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एन नॉट इंटू वाई वन. तो ये वाई वन इधर आ जाएगा, ये आ गया आपके पास. फिर इसको आपने इसके साथ करना है, तो ये पूरा ऐसे काटेगा इसको, वाई जीरो वाई नॉट वाई जीरो स्मॉल स्क्वायर हो जाएगा, एन नॉट आ जाएगा. ठीक हो गया. फिर y1 ये पहला इसके साथ जाएगा, दूसरा y1 इसके जाएगा, तो ये y1 मॉड स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर एन नॉट. ठीक हो गया. और नीचे आपके पास वही टर्म आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस एन नॉट इंटू एन नॉट माइनस दिस. ये सारा आपके पास ऐसे करके बन जाएगा. समझ आ गया आपको कैसे? ये स्क्वायर गलती से पूरा पड़ा हुआ है, आप बस स्टेप्स फॉलो करें. थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं मेरी कैलकुलेशन में, आपने स्टेप्स फॉलो करना है, हर चीज़ आराम से हो जाएगी. ओके सर. ये हमने ड्राइव कर लिया. ये हमने क्या ड्राइव किया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x. ये क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x से. ठीक हो गया, ये हमने निकाल लिया. अब हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y गिवन x भी. वही स्टेप्स हैं, पहले आप y निकालें, वहां पे देखिए ये जीरो हो जाएगा, चूंकि मैंने आपको पहले समझाया था. क्यों जीरो होगा, चूंकि वहां पे पहला सिंबल आपने जीरो भेजना है, तो नॉइजी मिलेगा आपको. दूसरे में आपको ए स्क्वायर नॉट होगा, चूंकि बी में दूसरे में आप जो है वो आप भेजते हैं ए. ये हो गया. अब इसका आपने के वाई निकालना है. अब के वाई का आपने वही तरीका इख्तियार करना है और आप चेक करेंगे ये वही होगा वाई जीरो जीरो और ये होगा वाई वन. ठीक है. और आपका वाई जीरो का वेरिएंस आएगा, जो एन नॉट है एन नॉट आ जाएगा, बाकी दोनों इंडिपेंडेंट नहीं, जीरो हो जाएंगे. और इसकी वेरिएंस यहाँ पे आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस एन नॉट हो जाएगा, ये इसका डिटरमिनेंट बन जाएगा. अब आप इसका इन्वर्स लिख दें, उसमें उल्टा कर दें दोनों को, ये दोनों नेगेटिव हो जाते हैं और ये इसको 1/this लिख दें. फिर इस पूरे इन्वर्स को आप उसकी अप्रोप्रिएट इक्वेशन में पुट कर दें. ठीक है. जब आप पुट करेंगे तो एक्चुअली आप देखेंगे कि आपको ये सारा जवाब आएगा. वो मैंने स्टेप्स नहीं किए पुट करने के बाद, मगर आप पुट करके देख लें, कोई खास बेसिकली यही आ रहा है, बस y0 y1 इंटरचेंज हो रहा है. यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपका जो था ना y0 आ रहा था एन नॉट के साथ, y1 आ रहा था. अब क्या होगा, y0 आएगा ए स्क्वायर प्लस एन नॉट के साथ और y1 मॉड स्क्वायर आएगा एन नॉट के साथ. उसके बस उल्टा ही हो गया ना खाली. ठीक है, y0 आएगा इसके साथ और y1 आएगा एन नॉट के साथ. ठीक है.
अब आपने दोनों निकाल दिया, एफ वाई गिवन एक्स बी भी निकाल लिया, एफ वाई गिवन एक्स ए। अब आपका लाइक्लीहुड रेशियो क्या था, लॉग नेचुरल ऑफ वाई गिवन एक्स ए डिवाइडेड बाय वाई गिवन एक्स बी। तो मैंने उसका फॉर्म में लिखा, उसमें आप एन ना भी लिखें, वैसे तो एन स्क्वायर है, मगर आप ना भी लिखें तो उसमें तो कट ही जाना है ऊपर नीचे, डिटरमिनेंट भी कट जाएगा, आगे बस सिर्फ एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल दोनों जो हैं वो बच जाएंगे। समझ आगे सबको यहाँ तक? ये एक्सपेरिमेंट मैंने एक शॉर्ट में लिखा, मतलब इसमें Yes. पूरी टर्म यहाँ पे वो पूरी टर्म है वो भी हम कर लेते हैं। यस फिर आगे बताया एक्सपेंशन का सर रूल ये क्या जो होता है, आपने कहा कि सर वो जो आपने कहा कि उल्टा हो गया है, वो क्या उल्टा हो गया था, वाई नॉट वाई जीरो उधर आना था वो एन नॉट के आप थोड़ा साथ। सा खुद से कर, नहीं मैंने सही किया हुआ यहाँ पे, मैं समझा रहा था यहाँ पे कि ठीक है, ऊपर गलत था। नहीं ऊपर भी ठीक है, दोनों सही है। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ये वैल्यू ठीक है इससे ठीक है। डिफरेंट क्यों आई ऊपर वाले से, ज़ाहिर डिफरेंट आएगी ना, इससे डिफरेंट आएगी कि यहाँ पे आपका मैट्रिक्स थोड़ा इंटरचेंज हो गया है और इनवर्सली आपकी वाई वेक्टर्स की वैल्यूज भी ऊपर चेंज नीचे हो हो गई। हाँ गया। चेंज हो गई, ठीक है। यस ये आपका आगे a माइनस बी, ठीक हो गया, एक्सपोनेंशियल a माइनस बी, और आपको पता है लॉग है जो एक्सपोनेंशियल वैसे आपस में एक दूसरे को काट देते हैं, तो ये तो a माइनस बी सादा बन जाएगा, ठीक है। अब जी a माइनस बी की वैल्यूज पुट कर दें आप, दोनों के नीचे a स्क्वायर नॉट, दोनों का एलसीएम सेम था, ये मैंने a को पुट किया जिसमें वो y गिवन a था, और ये मैंने पुट किया b को, ठीक हो गया, b को मैंने पूरा पुट कर दिया, b का चूंकि माइनस था तो उसका माइनस माइनस कट जाएगा, देखिए दोनों में माइनस पुट है ना, दोनों के एक्सपेंशन में माइनस माइनस है, इधर भी इसके अंदर माइनस है, इसके अंदर भी माइनस है, तो जो b का माइनस है वो तो प्लस हो जाएगा और a का माइनस वैसे ही रह जाएगा, ठीक है, और ये वो सारी टर्म्स आ जाएंगी। अब आप देख रहे हैं कि जो y0 n नॉट मॉड स्क्वायर और यहाँ पे भी y0 n नॉट मॉड स्क्वायर, मगर ये प्लस है ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और y1 n नॉट y1 n नॉट के साथ है और ये भी y1 स्क्वायर n नॉट के साथ, तो ये भी दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो आपके पास फाइनली ये दोनों बचेंगे, यानी इसका a स्क्वायर निकल आएगा, इसका a स्क्वायर निकल, ये टर्म्स आपके पास आएंगे, तो आपका लाइकलीहुड ये निकल आएगा। और अगर सर आप ये इसको मैथमेटिकल मॉडलिंग किसी कर रहे हैं जी, आपके दोबारा क्या पूछे, क्या कह रहे हैं? सर? ये जो सारी मैथमेटिकल मॉडल किस पैरामीटर को या किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं, इसका यूज किधर है? यूज तो अभी आप थोड़ा सब्र कर लें, अभी तो आपने सिर्फ लाइकलीहुड रेशियो निकाला ना, लाइकलीहुड समझ आ गया आपको, ठीक है। यस सर। इसके आगे थोड़ा सा चलेंगे तो पता चलेगा ना, अभी तो हमने लाइकलीहुड रेशियो निकाला है, जिससे जो फैसला करना होता है इसमें, अगर वो 0 से बड़ा है तो एक्स ए होगा, 0 से छोटा है तो एक्स बी होगा, ठीक है, ये हमने रेशियो निकाली अभी, ठीक है। आगे आप थोड़ा सा चलें साहब तो समझ आ जाएगा। अब वो कह रहा है कि इस लाइकलीहुड रेशियो को आप अज्यूम कर सकते हैं कि इट इज एक्चुअली projection of the received signal onto XA and XB। ठीक है ना, हमने जो बुक ने मिस किया था, हमने वो पूरी लंबी चौड़ी डेरिवेशन सारी इसने खा के हमने सारी की सारी आपके सामने रख दी है, जो ये वैल्यू आई है आप देख लें वही नोट्स में भी आई है, ठीक है। मैंने तो वो पूरा किया जो मिस था, समझ आ गया सबको, यहाँ तक क्लियर हो गया 3.7 तक, ठीक है। अब लेट अस गो फॉरवर्ड, नाउ व्हाट इट इज सेइंग, so we will decide that XA was sent if Y0 is greater than Y1, because you know if Y0 is greater than Y1 then this will be positive, and once it is positive then we know XA is sent, else XB is sent, that is we have just make use of the likelihood ratio, alright. So we can decide whether XA is sent or XB is sent just by taking the sign of this likelihood ratio, alright. Now we can also assume, ये इसने इसकी अच्छाई बताई, आप पढ़ लीजिएगा, मगर इसका असल पॉइंट यहाँ पे, we can also say that our detector decides on y0 and y1 by just projecting y onto each of the vectors xa and xb, ठीक है। देखिए ना फैसला किस पे हो रहा है, फैसला हो रहा है y0 पे और y1 पे। अगर y0 ग्रेटर होगा तो ये टोटली पॉजिटिव होगा, इसका मतलब a सेंड हुआ था, और अगर y1 ग्रेटर होगा तो टोटली नेगेटिव होगा, इसका मतलब हो गया कि लाइक्लीहुड नेगेटिव, इसका मतलब कि आपने
एक्स बी को सेंड किया था, ठीक है। सो व्हाट कैन वी से, वी आर डिसाइडिंग ऑन y0 एंड y1, so we can say that we are just projecting y vector onto xa or y vector onto xb. If I project y vector onto xa, I will get y0. If I project y vector onto xb, I will get y1 mod square. And you can also see in this figure here, this was a received vector y. If I project my y vector onto xa, I will get y0. ये देखिए ना, इसको जो आप प्रोजेक्ट करिए, आप सकते हैं आपका कोई वेक्टर है, आपने उसको एक्स एक्सिस पे प्रोजेक्ट किया, क्या इसको आप इससे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये लेंथ आएगी ना आपके पास, द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन टू द एक्स एक्सिस, ये y0 है। तो एक्चुअली ये वेक्टर था क्या, दिस वेक्टर वाज xa. So I have just projected y onto xa, I will get the projection will be y0. If I project my y onto x, this is yb, project my y onto xb, I will get the projection will be equal to y1. And I just compare the two projections, whichever is greater. If y0, this means that more of the projection of y is on xa, this means xa was sent, else xb was sent. समझ आ गया सबको? यस सर। तो ये प्रोजेक्शन का फार्मूला जो ये लिखा हमने, ये वाला है लाइक्लीहुड वाला? लाइक्लीहुड तो हमने ड्राइव किया ना बैग, ये सर आपने ड्राइव कर लिया सर फॉर्मूला। अब इसको यस सर। इंटरप्रिटेशन बता रहे, इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है इसको हम आपने कैसे लॉजिकली जस्टिफाई करना है इस जवाब को, इंटरप्रिटेशन बता रहे यस ना। सर। ये इंटरप्रिटेशन क्या है कि हमें ये जब डिसाइड हो गया ये ग्रेटर है तो ये, अब y0 है क्या चीज, y0 कुछ भी नहीं है, वो y वेक्टर को आपने x में प्रोजेक्ट किया है, तो ये लेंथ है ना y0। यस सर। यस सर। इसका मतलब आपने सर मैं समझ गया हूँ। चलो सर क्वेश्चन ये है कि जो हमारे पास ये लाइक्लीहुड का जो वेक्टर बनाया है वो y वाला वेक्टर है? नहीं, लाइक्लीहुड का वेक्टर नहीं है, फिर आप कंफ्यूज ना हो। यानी लाइक्लीहुड एक सिर्फ नंबर है, हमने उसको शो किया वो y हाँ। वाला वेक्टर है। हाँ, ये लाइक्लीहुड ऑफ y वेक्टर है, मगर अब ये सिर्फ एक नंबर आ रहा है, या वो प्लस में होगा या वो माइनस में होगा। सही सही। तो सर अब नंबर का अगर वो प्लस में होगा तो हम कहेंगे कि वो x a है, माइनस में होगा तो हम x b कहेंगे। हाँ मतलब हाँ, y0 ज्यादा, इसका मतलब जाहिर है x से गया था, ठीक है सर इतनी समझ आ गई। लेकिन वो जो नीचे आपने ये बनाया हुआ है उसमें हमने प्रोजेक्शन आप कह रहे हैं प्रोजेक्शन निकालना पड़ेगा। अगर x a वाला प्रोजेक्शन बड़ा है x b हाँ। से, तो हम तो कहेंगे कि x a भाई, ट्रांसमिट हुआ था। तो x का प्रोजेक्शन है क्या, x का प्रोजेक्शन y0 है ना, सही सही ठीक है ना। सही x से है क्या, x से आपका a0 है ना, और ये 0 है, तो आप कह सकते हैं a0 x एक्सिस हो गई। भाई x एक्सिस क्या होती है, सही सही। y0 होती है, सर x समझ एक्सिस में वैल्यू होती लगी है, y0। यस सर। ठीक है। तो ये y0 ठीक है, है ठीक है। थैंक यू सर। मैं क्या कह रहा था, अच्छा कोई सवाल आप पूछे मुझे। जी सर, एक तो ये जो फिगर की डिस्क्रिप्शन लिखी है नॉन कोहेरेंट डिटेक्टर, सर नॉन कोहेरेंट का मतलब पूछना है, और एक ये M0 M1 ये वही नॉन, एक मिनट पहले एक सवाल, XB एक सबर देखिए, पहले आप देखें नॉन कोरेंट, मैंने आपको बताया था क्या होता है नॉन कोरेंट। नॉन कोरेंट होता है जहां आपको एच का पता ही ना हो। तो अभी जो हमने ये जो सेक्शन पूरा स्टार्ट, एक मिनट सुन तो लें, ये जो सेक्शन हमने स्टार्ट किया ये है ही सारा नॉन कोहेरेंट, कि रिसीवर को नहीं पता कि एच क्या है, उसको बस इतना पता वाई आ रहा है, बस उसको इतना पता, अब वाई पे उसने फैसला करना है, तो पहला सिस्टम आपका फेल कर गया। इस वाले में भी उसको नहीं पता कि एच क्या है, उसको एच का, इसीलिए तो ये सारा नॉन कोरेंट हम पढ़ रहे हैं। अच्छा, आपका दूसरा क्वेश्चन क्या था? सर ये जो एक्सिस है एक्स, ये M0 M1 है कि XA XB है? ये एक्स जो है, ये एक्स एक्सिस और जी वाई जी एक्सिस, जी सर जी जी। ये M क्या है सर, एक्सिस को कर रहा है? अच्छा, आप कह रहे हैं एम क्या कर रहा है, ओ अच्छा एम, वैसे तो ये एम क्या कर रहा है, इसमें एम बताया कुछ, वैसे मुझे खुद नहीं पता कि एम क्या कर रहा है। मे बी कि ये एम इस वाले एम से भी कर रहा है, जो इसका टाइम हो शायद, ये एम टाइम, एम टाइम को शायद कर रहा हूँ।
सर डिस्क्रीट M01 टाइम को किसको डिस्क्रीटाइज टाइम को डिस्क्रिटाइज टाइम तो हमारा वैसे तो सिंपल टाइम थोड़ा सर सा कह ठीक है सकते हैं। सर, ये M1 ठीक है सर, क्योंकि जो अगर हम Y0 ले रहे हैं वो टाइम 0 पे ले रहे हैं, Y1 ले रहे हैं टाइम 1 पे ले रहे हैं, इस वजह से उसने शायद ऐसा किया। सर लेकिन वो तो एक्सिस पे नहीं होगा, एक्स एक्सिस पे। चले उनकी भी ये भी सही कह रहे हैं एक तरह से, मगर वैसे तो वो भी थोड़ा गलत है क्योंकि एक्स ए जो है ना वो तो फिर दोनों पे एग्जिस्ट कर रहा है ना। मगर चले इनकी बात ले लेते हैं। वो ये कह रहे हैं ना कि भाई ये आपने जब उसको प्रोजेक्ट किया, इस तरह प्रोजेक्ट किया, तो जाहिर है वो आपने Y0 को निकाला ना। Y0 तो आपका M0 टाइम को कॉरस्पॉन्ड कर रहा था और Y1 जो है वो आपका M1 को कॉरस्पॉन्ड कर रहा था। तो आप यहाँ पे M0 M1 लिख सकते हैं, मगर एक्चुअली ये M0 M1 तो एक्चुअली इमटेरियल है। असल चीज़ है कि XA और XB है। XA आपका A0 पे खड़ा हुआ है एक्स एक्सिस पे, और ये 0A पे खड़ा हुआ है, ये Y एक्सिस पे खड़ा हुआ है। आप सिंपल Y को प्रोजेक्ट ले रहे हैं XA पे या Y को प्रोजेक्शन लेंगे XB पे, और दोनों ही प्रोजेक्शन को कंपेयर करेंगे। जो बड़ी होगी आपने कहना कि जी वो XA सेंड हुआ या XB सेंड हुआ प्रोजेक्शन के हिसाब से। ये उसने टाइम को भी डाल दिया, ठीक है आप डाल दें, मगर ये ऐसे ही है, बस जरूरी नहीं है। असल चीज़ आप समझे कि Y को आपने X से या XB पे प्रोजेक्ट किया, ठीक है। और सर ये प्रोजेक्ट इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि H(m) होता है वो E-J, इस वजह से E-J की फॉर्म में आता है, तो कॉज और साइन आ जाते हैं, इस वजह से प्रोजेक्ट का हम लफ्ज़ इस्तेमाल करें। नहीं E-J को भी आप मत लाएं यहाँ पे। E-J कुछ नहीं है, बस H तो एक वो है ना साइक्लोसिमेट्रिक है। अब आप वो छोड़ दें EJ, वो से टोटल रैंडम नंबर बन गया अब साइक्लोसिमेट्रिक। अब उसके आगे हम चल रहे हैं। EJ VJ की कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही। तो ये प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन इसलिए कि आपके पास 2 डायमेंशनल स्पेस है ना भाई। एक Y0 एक Y1 दो स्पेस है ना, दो वेक्टर्स है ना आपके पास। एक वेक्टर है तो उसके दो एक्सिस हो गए, एक एक्सिस XA वाला है, एक एक्सिस XB वाला है। XA पे करेंगे तो Y0 आएगा, XB पे करेंगे तो Y1 आएगा। ये तो इसको इंटरप्रिटेशन बता रहे हैं ना आपको कि वेक्टर को आपने कैसे स्केलर पे कन्वर्ट कर दिया। वेक्टर रिसीव हुआ था मगर आपने एक्चुअली इसको प्रोजेक्ट किया ना X से XB पे, उससे आपका Y0, अब Y0 Y1 पे आपने फैसला करना बस। Now let us go further. Now by the help of this likelihood ratio we will be able to find the error. So we can find the error probability. Let us assume that XA is transmitted, and we know that Y0 and Y1, again you know, we have shown, that is already shown, is Cn0 and A square plus not Cn. This has been shown in all that. Now, but remember in this expression we have not Y0, we have Y0 mod square. Here we have Y1 mod square. So if I want to find the error probability, I need to know the probability distribution of Y0 mod square as well as Y1 mod square. हाँ जी भाई, Y0 तो पता है भाई, Cn हो गया, जो भी आपने कहा 0 n A square plus n naught हो गया, Y1 आपका Cn 0 n naught हो गया। तो Y0 mod की क्या probability distribution होगी? चलिए मॉड से पहले आपने बताया Y0 mod की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी? हाँ जी, सर ये कौन सा वेरिएंस होगी रैंडम मॉड की, वेरिएबल? नहीं, कौन मैं सा सिर्फ रैंडम ये पूछ रहा हूँ वेरिएबल कि है? Y0 एक सर्कुलर सिमेट्रिक गॉसियन रैंडम वेरिएबल है, 0 A square plus n naught के। कोई आपसे पूछ रहा है कि जी Y0 mod की क्या PDF होगी, तो आप क्या जवाब देंगे? सर वो सेमी सर्कल बन जाएगा ना, पहले हमने देखा था कि नाम बताएं ना, सेमी सर्कल तो बन गया, नाम क्या होगा? रेली डिस्ट्रीब्यूशन होगी ना। मैंने आपको बताया चैप्टर 2, मैंने इसलिए कहा था सॉल्व कर लें वो सारा चैप्टर 2 वाला, भूल गए आप लोग सारा, ये आपने किया नहीं होगा मेरा ख्याल से, ये हमने किया नहीं था। अगर रेली सर्कल सिमेट्रिक होगा तो रेली डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी उसकी मॉड की, और मॉड स्क्वायर करेंगे तो एक्सपोनेंशियल बनेगी।
ठीक हो गया? राइट। अच्छा, इसमें मैं ना चाहता हूँ थोड़ा सा ना, आपको एक एरर है तो वो मैं चाह रहा था कि आपको थोड़ा सा बता दूँ, बाद में फिर आप कहेंगे सर ये तो हमें पता ही नहीं चला, और बाद में फिर गलती भी ना हो। तो ये मैं आपको एक बता दूँ ताकि आज आप ड्राइव करें तो खुदा के इसको ज़रा ड्राइव भी करके देख लें ताकि आपको इसका एरर भी पता चल जाए, फिर एग्जाम में आएगा तो आप हाथ पे हाथ धरे बैठ जाएंगे। ऑलराइट, सो प्लीज ड्राइव दिस नाउ, प्लीज सी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। नाउ इन दिस बुक जॉन प्रोकस x and y were sigma square. Again I try to repeat so that you know, वो आपने पूछ ही लिया है तो मैं नहीं चाहता कोई चीज़ बाद में कंफ्यूजन करती रहे तो कहें जी ऐसे हो गया वैसे हो गया। देखें और से देखें, वहाँ पे एक्स वाई सब सिग्मा स्क्वायर थे अलग अलग, तो जो उसकी रियली डिस्ट्रीब्यूशन बनी, सॉरी, वो बन गई 2 सिग्मा स्क्वायर। वहां पे सिग्मा स्क्वायर क्या था? सिग्मा स्क्वायर वाज वेरिएंस ऑफ एक्स, सिग्मा स्क्वायर वाज वेरिएंस ऑफ वाई, दोनों का अलग अलग, रियल और इमेजिनरी दोनों का अलग सिग्मा स्क्वायर था ऊपर इसके। अब यहाँ इन साहब ने क्या किया, ये तो कहता जी सिग्मा स्क्वायर टोटल का है और फिर सिग्मा स्क्वायर, तो ये गलत किया है इसने। तो इससे क्या हो गया है, गलती हो गई। क्या गलती हुई है? यहाँ पे क्या आना चाहिए था, यहाँ पे 2 सिग्मा स्क्वायर आना चाहिए था, फिर तो ठीक है। हाँ, या वो ये लिखता है यहाँ पे कि सी एन इज इक्वल टू, यहाँ ना लिखता है, अब यहाँ पे लिखता कि इज इक्वल टू n0 सिग्मा एल स्क्वेयर, क्या वो लिखता n0 सिग्मा एल स्क्वेयर प्लस j n0 सिग्मा एल स्क्वेयर, फिर तो ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक था। मगर आप चाहते हैं लिखें सी एन और फॉर्मूला डालें रियल वाला, तो ये गलत है। तो आप इसको रियल इमेजिनरी में ब्रेक करें, फिर आप सिग्मा एल डालें और फिर आप बात करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी बात। मगर जब आप सी एन में रिप्रेजेंट करें, सी एन का वेरिएंस होता है वेरिएंस ऑफ सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों का सिग्मा। तो ये एक्चुअली जब आप लिखेंगे वेरिएंस तो वो सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, तो वो हो जाएगा 2 सिग्मा स्क्वायर। समझ आ रहा है आप लोगों को नहीं आ रहा? पहले एक दफा इसको सॉल्व तो करें, गॉसियन की वो लगाए ना जो जैकोबियन, और ड्राइव करेंगे तो फिर आपको कुछ समझ आना शुरू होगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा कुछ? सर हो रहा है सर। ठीक है, यस सर। सर ये रियल के लिए शायद उसने लिखी हो, सिर्फ उसने वो इमेजिनरी नहीं ना लिखी लिखा ना, हो। इसकी गलत है, आपने सही करना है एग्जाम में, ये मेरा मतलब है। बाकी बहस करने का फायदा सर नहीं है, हमने मैंने आपको समझा दिया। सही है, सही है। ठीक है, अच्छा इधर अब वापस हम अपने चैप्टर में 5 मिनट रह गए, कोशिश करें। ठीक है, मैं क्या कह रहा था, हाँ, अब सवाल ये है कि हमारा y0 मॉड क्या होगा, वो रियली होगा, और y0 मॉड स्क्वायर क्या होगा, वो होगा एक्सपोनेंशियल सर, एक्सपोनेंशियल होगा। अब ये है कि एक्सपोनेंशियल, उसकी एक्सपोनेंशियल। उसकी आपको डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी पड़ेगी दोनों की। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये तो फिर काम लंबा पड़ गया, तो मैंने वो आपको नोट्स में शेयर कर रहा हूँ, मगर वैसे ही आपने खुद से करना है। अब हर चीज़ आपको हलवा बना के नहीं मिलेगी। थोड़ा सा ना व्यू करके ना रोटेट कर देती हूँ। हाँ ठीक है, किए तो वही आ गया सी, मैंने इसको जरा सॉल्व किया है। अब देखिए ना, y0 आपका ये था। अब आपसे कोई कहता है जी आपने इस y0 की मॉड की डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, ये रफ में है मगर इसका आपने अच्छे से कर लेना। जब आप करें तो आप कहेंगे जी y0 इज इक्वल टू वाई आर प्लस जे वाई नॉट, नाउ इट्स मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू y0 वाई आर जीरो स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैंने इसको एक्चुअली लिख दिया x प्लस जे वाई, तो वो भी ठीक है। या आप इसका y0 वाई लेना तो ये हो जाएगा वाई आर जीरो स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई आई जीरो स्क्वायर, और ये इसका अंडर रूट हो जाएगा। फेज का क्या हो जाएगा, tan इनवर्स y ओवर x।
वो सारे वही स्टेप्स करें। फर्क क्या हो गया कि Cn की जगह क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस n नॉट आ गया। वहां पे क्या था, उसने गलती क्या की है, 2 सिग्मा स्क्वायर उसको लिखना चाहिए था, और यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल a स्क्वायर प्लस n नॉट है। तो जब मेरा आप ये सारे स्टेप्स कर लें, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करके इसका जवाब निकालेंगे, मैंने कहा आपको चेक करा दो ना, बाद में फिर आपको एग्जाम में आ गया, फिर आप हाथ पे हाथ धरेंगे कि ये क्या, ओ क्या हो गया। हाँ ये देखिए, वो आप सारे स्टेप्स करें, मैं ऐसे रफली दिया है, कोई आपने खुद ही से सारा करना है, मैं तो बता रहा हूँ आपको। आप देखिए मेरी बात जरा गौर से, जब मैंने इसका जवाब निकाला, वो सारा कुछ कर लें जो भी इस बुक में दिया हुआ है, तो जब इसका रेली का निकला ना, तो देखिए वो ये निकला है, क्या निकला है, e ऑफ माइनस आर स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस एन नॉट इंटू ए स्क्वेयर प्लस एन नॉट ओवर 2। चूंकि जो उसका जो डबल दिया था ना, डबल था इसका ए स्क्वायर प्लस एन नॉट, तो यहाँ पे इसका डबल 2 सिग्मा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एन नॉट आ गया, और यहाँ पे इसका हाफ आता है तो इसका हाफ आ गया। ये बिल्कुल सही डेरिवेशन होगी, ठीक हो गया। जो यही चाहिए था 2 सिग्मा स्क्वायर आपको, ठीक हो गया। तो आपका एक्चुअली तो ए स्क्वायर प्लस एन नॉट ओवर 2 था, जो आधा था, और डबल करेंगे तो ये पूरा फुल आ जाएगा यहाँ पे, जो होना चाहिए था, और ये इसका आधा आ गया सिग्मा स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और भी है, ये मैं अभी से बता रहा हूँ कि इनके मीन्स अभी चूंकि इसने देखें यहाँ पे मेंशन कर दिया इसने कि जी इसका मीन ये है। आप जब मीन निकालते हैं तो स्टूडेंट्स या तो उनको पढ़ाया नहीं जाता या क्या होता है कि एक बहुत ही, हर कम्युनिकेशन इंजीनियर को गॉसियन रैंडम वेरिएबल का मीन निकालने का ट्रिक आना चाहिए, वरना वो सॉल्व नहीं हो सकता। वैसे क्यों, चूंकि e ऑफ एक्स स्क्वायर का आप कहाँ से निकालेंगे, इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, माइनस एक्स स्क्वायर पावर के साथ आप नहीं सॉल्व कर सकते। तो इसकी इंजीनियर्स ने एक ट्रिक बनाई हुई है। होता ये है कि अक्सर लोग जो हैं उससे नावाकिफ हैं, उनको आता ही नहीं करना। मैंने इसीलिए वो ये कर दिया, जो अभी आपको बाद में मीन निकालना पड़ेगा इनका, तो फिर आपके हाथ पर सूझ जाएंगे। तो वो मैं आपको बस बता रहा हूँ। तो जो इसका एक्सपोनेंशियल है वो मैं नेक्स्ट में बता दूंगा लेक्चर में, चूँकि टाइम खत्म हो गया, मगर मीन मैं अभी से निकालना बता रहा हूँ। मीन आपने कैसे निकालना। अब सवाल ये है कि ठीक है जी, आपने इसका फर्ज करें कि मैंने ये उसको छोड़ दें, अब दूसरी बात कर रहे हैं हम। यदि ये मेरा एक रेली डिस्ट्रीब्यूशन थी, मुझे इसका मीन निकालना है। हमने कहा भाई ठीक है, आप फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूला क्या होता है भाई मीन निकालने का? फॉर्मूला होता है कि आप वो लिखें रैंडम वेरिएबल टाइम्स इस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, रैंडम वेरिएबल आ गया आर, क्या वो जो हमारा मैग्नीट्यूड था ना, आर अंडर रूट स्क्वायर मैग्नीट्यूड था वो, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। ठीक हो गया जी। अब डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा फॉर्मूला लिख दिया आपने, ठीक है, लिख दिया आपने। अब आपके पास ये आ गया आर स्क्वायर ई माइनस स्क्वायर। अब जी अबू जी, चलो ठीक है, हम यहाँ पे लेक्चर खत्म। एक मिनट और पढ़ लेते हैं भाई, मैं हमने 1 मिनट वैसे लेट स्टार्ट किया लेक्चर, ठीक है ना। अब ये हो गया आर स्क्वायर ई माइनस आर स्क्वायर ओवर 2 सिग्मा। अब ये तो सॉल्व नहीं हो सकता। इसका ट्रिक क्या है? ट्रिक इसका ये है कि आप इसका डेरिवेटिव यूज करें। तो व्हाट इज द डेरिवेटिव? इसका डेरिवेटिव जो आप यूज करेंगे तो वो तो दिस एज इट इज आएगा, और इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो -2 और 2 सिग्मा स्क्वायर, ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक हो गया। तो अब मैं ये कहता हूं कि आई विल राइट माई सिग्नल एस आर टाइम्स दिस सिग्नल। मैंने इस सिग्नल को पुट किया। भाई असल में तो मेरे पास ये चीज़ थी ना, मैंने इसको जानबूझ के इसकी ये वाली शक्ल को पुट किया। वो कैसे पुट किया, वो क्या मुश्किल है भाई, वो मेन तो वही चीज़ है। आपने क्या करना है, सिग्मा स्क्वायर अंदर ले आए, -r से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। -r से करने के लिए चूंकि यहाँ पे पहले ही आर स्क्वायर था, एक आर यहाँ ले जाए, माइनस पुट करें, माइनस से मल्टीप्लाई 2 दफ़ा कर दें ताकि माइनस माइनस आपका वैसे ही कैंसिल हो जाए। तो मैंने क्या किया, अपनी उसी एक्सप्रेशन में आर को 2 हिस्सों में कर दिया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो माइनस से प्लस हो जाता है। तो ये आ गया। अब ये जो चीज़ है उसको मैं लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ माय गॉसियन रैंडम वेरिएबल, मतलब एक्चुअली गॉसियन का स्क्वायर, वो मेरा मतलब। असल मुश्किल यही था ना, आर स्क्वायर हैंडल कैसे करें। जब आपने ये लिख दिया फिर मसला हो गया। अब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आराम से लगा सकते हैं। आर एज इट इज, इसका इंटेग्रल, ठीक है, माइनस आर का डेरिवेटिव, और इसका इंटेग्रल डेरिवेटिव तो वही आ जाएगा, सारा का सारा वही रैंडम वेरिएबल आ गया।
ठीक हो गया। अब तो आपने खाली लिमिट्स ही डालनी है ना, जब आप उसको इन्फिनिटी डालेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, मगर ई माइनस इन्फिनिटी ये जीरो हो जाएगा, ये सारा जीरो हो गया। जब उसने जीरो पुट किया तो आर जीरो आई, जो मर्जी पुट करें ये भी सारा जीरो हो गया, तो पहली टर्म तो वैसे ही जीरो हो गई। अब आपके पास ये टर्म रह गई, ये वाली टर्म। इस टर्म को आपने कैसे सॉल्व करने के, भाई ये मेरा ई एफ आर स्क्वायर है, ठीक है, गॉसियन रैंडम वेरिएबल ही है ना, ये गॉसियन रैंडम यही होता है ना, गॉसियन रैंडम वेरिएबल ई एफ एक्स स्क्वायर, ये गॉसियन रैंडम वेरिएबल ही है, ठीक है। हाँ जी, गॉसियन रैंडम वेरिएबल है। उसको मैंने कहा आपने इंटीग्रेट करना है जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक उसको इंटीग्रेट करना है। तो अब हमें वैसे ही पता है कि जब आप उसको सर 1/2 आ जाए। हाँ 1/2 आ जाएगा। वो इसमें एक चीज़ मुझसे बताना रह गई थी, ये सारा तो ठीक है, मगर इसको आपको एक स्टैंडर्ड रैंडम वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर सकें ना, उसको डिवाइड कर सकें। हाफ जो आता है ना वो तो स्टैंडर्ड का आता है ना, स्टैंडर्ड का, यहाँ पे तो स्टैंडर्ड नहीं, यहाँ पे तो सिग्मा स्क्वायर उसकी वेरिएंस है। तो उसको आपको कैसे हैंडल करेंगे, आप कहेंगे भाई ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने 1/2 पाई सिग्मा और 1/2 पाई सिग्मा दोनों से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। जब मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो ये जो सारी टर्म है अब ये प्रॉपर गॉसियन रैंडम वेरिएबल बन गया। तो ये इसका वेरिएंस है और ये भी इसका वेरिएंस 2 पाई सिग्मा इसका वेरिएंस आ गया। अब ये जो है जीरो से डिफरेंटली हाफ के बराबर होगा, तो यहाँ मैंने हाफ पुट कर दिया, हाफ इंटू दिस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। तो ये सिग्मा वैसे ही बाहर आ, 2 एक कट गया, तो ये आपका जवाब है, ये इसका मीन है। ये आपने किसका मीन निकाल लिया, मीन ऑफ रेली डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक हो गया। टाइम ऊपर हो गया, आई विल मार्क योर अटेंडेंस, मतलब ये यहाँ पे हम खत्म करते हैं। यू विल बी स्टार्टिंग मतलब आवर नेक्स्ट लेक्चर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड्स, वी विल फाइंड द मीन, we find the exponential distribution, its mean, and then we will see how to find the probability of error for this orthogonal modulation. So I am ending the lecture. If you have any question you want to ask, otherwise I will end the recording and end everything.